Executive Director and CEO of AIIMS Jammu, Professor Shakti Gupta, President Indian Association of Palliative Care, Professor Susma Bhatnagar, President Indian Association of Palliative Care, J&K Chapter, Dr. Rohit, Organizing Secretary for today's conference, Dr. Sunaina Gupta, distinguished delegates, friends from Jammu Kashmir administration, ladies and gentlemen. I am extremely delighted to be addressing this eminent gathering today. My hearty greetings to all the participants of this international conference. A warm welcome to all our esteemed friends from abroad. The Indian Association of Palliative Care has played a significant role in the expansion of specialized care based on the principles of palliative care, which has benefited not only to those patients suffering from terminal illness, but indeed to family members as well in dealing with post-traumatic stress. I am confident the 3-day-long deliberations with the renowned experts on various issues concerning palliative care will look into the challenges, integration of palliative care into healthcare at all levels, capacity building, recent advancement in pain management, and strengthening and incorporating principles of long-term care and palliative care. I would like to say that we as a society needs to acknowledge the significance and importance of palliative care, and we should encourage our medical fraternity to apply its principles from the time of diagnosis in terminal ailments like cancer, AIDS, etc. I want our healthcare system to be more sensitive towards the needs of individuals facing life-threatening illness and must focus on improving quality of life of patients, well-being of families, alleviate pain and suffering, and provide spiritual support. I remember during the second wave of COVID pandemic, we were battling many challenges in Jammu and Kashmir, particularly related to health infrastructure, and I was a bit surprised that neither we had self-sufficiency in oxygen generation for patients, nor we had palliative care system in any of the districts. As Madam Susma said, even accessibility of rational quality pain relief was not available. So as soon as we recovered from COVID, our focus was to set up 10-bed state-of-the-art palliative care and geriatric care wards in all districts of Jammu and Kashmir. These facilities were dedicated to patients on 31st March 2022. Reflecting on that initiative, I can say we bridged a big void in our healthcare system by offering dedicated facilities to critically ill and aging patients, ensuring their dignity and quality of life. Our second goal was reaching out to remote areas with modern facilities, and with palliative care system in place, we were able to reduce urban-rural divide to a certain extent, and in many cases delivered services including medical and psychological support at people's doorstep. But our task is far from over. Palliative care system is constantly evolving, and we need to constantly work on strategic framework, SOPs, and effective implementation. Like many of you, I often wonder why our health ecosystem has not been able to successfully and seamlessly integrated curative care and palliative care. Definitely, we have made some progress in community awareness and pain management, thanks to our doctors and experts, but we keep asking ourselves, have we done enough? Did we do justice in implementing principles of palliative care along with modern treatment facilities in the rural areas? Whether the partnership between private sector and the government has been able in managing distressing clinical complications? I think
these are important questions and has helped experts and policymakers strive for excellence in palliative care. We need to keep reminding ourselves that the patients with the terminal illness need more than just medicine. They need care with sensitivity and compassion. They need spiritual support. Such patients need a doctor or a nurse who would respect their wish. मित्रों, मैं कुछ वर्ष पहले पैलिएटिव केयर के जाने माने डॉक्टर टिमोथी का संस्मरण एक बार पढ़ रहा था। पैलिएटिव केयर के लोग नाम जानते होंगे उनका। उन्होंने एक जगह लिखा कि हम अक्सर ट्रीटमेंट, सर्जरी और मेडिसिन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें सामने बिस्तर पर पड़े इंसान की याद ही नहीं आती है और हम उसे अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण दिनों को उसके हिसाब से जीने का अवसर ही नहीं दे पाते। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि अधिक इलाज लाइलाज बीमारी से ग्रस्त पेशेंट के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आप जितना क्यूरेटिव केयर पर फोकस करते हैं उतना ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जाती है। डॉक्टर टिमोथी ने अपने एक कैंसर पेशेंट का उदाहरण दिया और उस पुस्तक में आगे लिखा उस पेशेंट के बारे में जो 2 हफ्ते से भयंकर पीड़ा से, पेन से गुजर रहा था। उन्होंने लिखा कि पेशेंट से मैंने पूछा कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप अपनी इच्छा से क्या करना चाहेंगे। तो उस पेशेंट ने तपाक से उत्तर दिया कि आई वांट टू गो फिशिंग। और अगले दिन उन्होंने अपने पेशेंट को फिशिंग पर जाने की अनुमति दे दी। 1 हफ्ते के भीतर उस पेशेंट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर टिमोथी आगे लिखते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि मैं अपने पेशेंट के आखिरी दिनों को बेहतर बना सका और उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर सका। पैलिएटिव केयर के बारे में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम पेशेंट को सुनें, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। अगर वो घर रहना चाहता है तो हम कैसे केयर उसके घर पहुंचा सकते हैं, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य हो। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। अगर भारत के परिदृश्य को हम देखें तो लाइलाज बीमारियां झेल रहे पेशेंट में 80% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट प्रभावी नहीं है और उनके लिए पैलिएटिव केयर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे स्मरण है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में पैलिएटिव केयर की बुनियादी व्यवस्था को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाने का निर्देश दिया था और इससे रिमोट एरियाज तथा कम संसाधन वाले क्षेत्रों को इसकी परिधि में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया। आप सब वाकिफ होंगे कि 2017 में ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पैलिएटिव केयर के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की तथा देश के सभी राज्यों को भारत सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट देना प्रारंभ किया ताकि इस महत्वपूर्ण व्यवस्था का लाभ पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ गंभीर रूप से बीमार लोगों तथा उनके परिजनों को मिल सके। मार्च 2022 में जैसा मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में सुविधा को पहुंचाने के अलावा जम्मू कैंसर हॉस्पिटल में फरवरी 2023 में पैलिएटिव केयर की शुरुआत हो गई थी। पहले वर्ष में लगभग 8000 कैंसर पेशेंट्स इसका लाभ उठा सके हैं। श्रीनगर में भी सपोर्ट सिस्टम को स्थापित किया जा चुका है। ये सच है कि 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नहीं थे। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के सहयोग से 3102 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित हुए हैं और 2023 की शुरुआत में भारत सरकार के सहयोग से ही कारुण्य योजना के तहत 18 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को पैलिएटिव केयर सेंटर्स के रूप में परिवर्तित किया गया है। हर एक सेंटर पर कोशिश हुई है कि ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर तथा ट्रेंड सपोर्ट नर्सिंग स्टाफ नियुक्त हों जो पेन मैनेजमेंट से लेकर स्पिरिचुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। जम्मू कश्मीर में पैलिएटिव केयर के लिए
कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग तथा अन्य सपोर्ट के लिए जुलाई 2023 में यहाँ के प्रशासन ने एक कदम उठाया था और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ एक MOU साइन किया था। इस साझेदारी का लाभ आज अनेक लोग उठा रहे हैं। मैं जम्मू एम्स की टीम तथा प्रोफेसर शक्ति गुप्ता जी को हृदय से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और पैलिएटिव केयर में जो एम्स जम्मू का योगदान है वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का भी मार्गदर्शन करेगा तथा उन्हें प्रेरणा देगा। मैं इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों से चंद बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। कोई मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब से मैं पढ़ रहा हूँ मरीज बहुत दिखाता हूँ डॉक्टरों से मेरा परिचय देश भर में, तो उन बिंदुओं को आपके सामने में रखना चाहूँगा। आजकल अति महत्वपूर्ण क्षेत्र एक बन गया है हॉस्पिस केयर। इसकी बड़ी चर्चा देश में। मैं इसे पैलिएटिव केयर के समान ही मानता हूँ और एक नए ब्रांच के रूप में ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना रहा है। भारत के लिए व्यवस्था नई नहीं है, बल्कि इसका लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस हमारे ग्रंथों में मौजूद है। आचार्य सुश्रुत के समय माने 800 ईसा वर्ष पूर्व इसके साक्ष्य हमारे देश में मौजूद हैं। उस समय हॉस्पिस तथा केयर सेंटर्स को हमारे देश में मुमुक्षु भवन कहा जाता था। मैंने जहाँ शिक्षा ग्रहण की काशी में, आज भी वहाँ मुमुक्षु भवन 80 घाट पर मौजूद है। ऐसे अनेक लोग जो जीवन के अंतिम क्षणों में मोक्ष पाने आते थे वो वहीं रहते थे, और जिसमें टर्मिनल इलनेस वाले पेशेंट्स की भर्ती तो होती ही थी, वहाँ दवा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल तथा स्पिरिचुअल सपोर्ट पर बल दिया जाता था। वहाँ डॉक्टर से लेकर नर्स तक की जिम्मेदारी तय होती थी कि जीवन की अंतिम घड़ी में पूरी मानवता के साथ उनकी देखभाल कैसे की जाए। इलाज में तथा प्रतिदिन की दिनचर्या में उनकी इच्छा और उनकी मर्जी कैसे शामिल की जाए, इसका ध्यान रखा जाता था। इसलिए मेरा आग्रह होगा आप लोगों से कि इस बात को अवश्य में ध्यान रखिए कि लाइलाज बीमारी के इंटीग्रेटेड इलाज का तरीका हमारे पूर्वजों ने पहले दिया था, जिसमें सिर्फ दवाइयाँ शामिल नहीं थीं, बल्कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों प्रकार की मिली जुली व्यवस्था हमारे देश में थी। आज भी एक दो प्राचीन शहरों में, जैसा मैंने कहा, मुमुक्षु भवन चल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें चलाने वाले लोग कम हो गए हैं। और जिस प्रकार पहले के ज़माने में सपोर्ट स्टाफ काम करता था, उसका भी अभाव दिखाई पड़ रहा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देश के अति पिछड़े इलाकों में इस व्यवस्था को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे इसका रिवाइवल हो सके, इसका हमें मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत की बहुत बड़ी एक आबादी है जिसे इस व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। क्योंकि ये तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए आप सबके सामूहिक सहयोग से ऐसे परिवारों पर दबाव, आर्थिक दबाव विशेष रूप से कम होगा। कारुण्य योजना के माध्यम से भारत सरकार रिमोट एरियाज तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन आप सबकी भागीदारी, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेस की विशेष ट्रेनिंग, अनुकूल वातावरण के लिए SOPs का रिकमेंडेशंस, ये आपके ऐसे योगदान होंगे जिससे डॉक्टर्स तथा नर्सेस सेवा के संस्कार की भावना के साथ ऐसे मरीजों का ख्याल रख सकेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरी तन्मयता से निभा सकेंगे। मैं समझता हूँ हमारे हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पेशेंट्स के दर्द और पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं, फिर चाहे बीमारी का इलाज संभव हो या न हो। मेरा निवेदन है कि ऊपर से लेकर निचले स्तर तक पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में दर्द से राहत के अलावा इस विषय की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स की देखभाल में निरंतरता कैसे लाई जा सकती है। मेरा तीसरा निवेदन होगा कि सभी एक्सपर्ट्स तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर मिलकर मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ताकि ट्रेन केयर गिवर का ह्यूमन रिसोर्स पूल पूरे देश में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हो सके। ये सच है कि पैलिएटिव केयर में
अनेक ऐसे जटिल मुद्दे हैं जिनसे निपटने के लिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज दोनों चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी अवेयरनेस तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पैलिएटिव सपोर्ट एवं पेन मैनेजमेंट के लिए, जैसा अभी SOP आपने बनाई है, यूनिफॉर्म SOPs तैयार होनी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू एम्स ने आज एक नई पॉलिसी लॉन्च की है, पेन फ्री एम्स जम्मू का ऐलान किया है, जिसके माध्यम से पेन मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तथा असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस उपलब्ध होंगी। मैं एम्स जम्मू के पेन फ्री पेशेंट केयर विज़न की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। और पांचवा और आखिरी आग्रह मेरा होगा कि मेरी अपेक्षा है कि शोकाकुल परिवार के कठिन समय के लिए तथा उनके परिजनों, फैमिली मेंबर्स के लिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से निपटने के लिए भी मेडिकल प्रोफेशनल्स तथा ट्रेंड कम्युनिटी वर्कर्स की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एम्स जम्मू में बनना चाहिए। क्योंकि जो चला जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन परिवार के जो सदस्य ट्रॉमा में आते हैं उनको कैसे हम आराम दे सकते हैं। आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में इसी विषय से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विषय केयर फॉर एजिंग पॉपुलेशन की भी चर्चा करना चाहूँगा। आप लोगों की तकनीकी भाषा में इसे जीरियाट्रिक केयर कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए थे। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की कुल आबादी का करीब 21% हिस्सा 20.8% पॉपुलेशन 60 ईयर्स से ऊपर की होगी। बुजुर्ग आबादी में इस वृद्धि के लिए हमें एक मजबूत केयर इकोनॉमी को विकसित करने की नितांत आवश्यकता है, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि बुजुर्ग स्वस्थ, सम्मानजनक और पूर्ण जीवन जी सकें। वर्तमान में ग्लोबल स्टैंडर्ड की तुलना में भारत की केयर इकोनॉमी अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि अभी से अर्बन माइग्रेशन तथा न्यूक्लियर फैमिली की वजह से एल्डर केयर सर्विसेज की मांग बढ़ने लगी है, देश में भी और जम्मू कश्मीर में भी। हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तथा बुजुर्गों के लिए स्पेशल सर्विसेज में मौजूद गैप को समाप्त करने के लिए अभी से सोचना होगा। विशेष जीरियाट्रिक ट्रेनिंग वाला वर्कफोर्स तैयार करना होगा, और मेरा सुझाव होगा कि आने वाले समय में सभी एक्सपर्ट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज इस देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए डेवलप करें, जिसमें रेगुलर चेकअप, जीरियाट्रिक केयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और पैलिएटिव केयर ये सभी शामिल हों। मैंने ज़्यादा वक्त लिया, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। जब 2 बार पहले आया था तो काम शुरू हुआ था। आज देख करके प्रसन्नता हो रही है कि अब सहसवा काल से निकल करके एक वटवृक्ष का रूप एम्स जम्मू ने, विजयपुर ने लिया है। मैं यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन वेलकम ऑल द डेलीगेट्स। मे दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिकम yet another successful milestone in the illustrious history of the Indian Association of Palliative Care. Jai Hind.